Your goal is not in her. Good morning students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Student, today we will start chapter 2 of class 9th, is matter around us pure. Okay, so firstly I will discuss with you contents related to this chapter. In this chapter we will study about classification of matter on the basis of chemical properties. Okay, pure and impure substances and their types. इसको हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे. एंड नेक्स्ट कम सॉल्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स. ओके, देन नेक्स्ट कम कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. ये जो सॉल्यूशन टॉपिक है इसमें जितने भी टाइप्स हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, और इनका क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर. एंड नेक्स्ट कम कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन में जो कंसंट्रिक टर्म होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सॉल्युबिलिटी, ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. ओके, कुछ मिक्सचर हैं उनका सेपरेशन कैसे किया जाता है, इसमें हम ये स्टडी करेंगे. एंड नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. प्रीवियस चैप्टर में हमने फिजिकल स्टेट बेस क्लासिफिकेशन पढ़ा था मैटर का, ठीक है, इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. Okay student, watch this video till the end. Start with that everything which present around us. जो भी चीज़ हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, known as matter, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है, ठीक है. We can say anything which occupy space and got mass is called matter. Okay, in हिंदी we called it पदार्थ. ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था about matter. So here we will not discuss more about this. We all know everything like the mobile on your hand, okay, and your notebook and this pen, even this pen on my hand, all these are matter. So matter can be present in the form of pure substances and impure or mixtures. Okay, and if we talk about the pure substances, students, a pure substance is one which is made up of only one, okay, kind of particle. These particle may be atoms or molecule हो सकते हैं. So we can write here only one substance is present. Only one substance is present. That means no impurity. Okay, so we can also say that a pure substance is one which is made up of only one kind of atoms or molecules. For example, suppose we take sulfur element, that is made up of only one kind of particle called sulfur atoms. Suppose we take this iron block, okay, this is iron block Fe, okay, so it means this block is made up of only iron particles. Okay, next comes impure or mixtures. Impure और mixtures क्या होते हैं? A mixtures is one which contain two or more different kind of particle. Impure है तो इसका मतलब उसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. वो पार्टिकल्स जो मैं बता रही हूँ आपको, वो क्या हो सकते हैं? कोई भी एटम और मॉलिक्यूल होगा, ठीक है. ए मिक्सचर कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस. और जब वो उसमें एक या एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस है, इट मीन्स दे गेट मिक्स्ड टुगेदर. ओके, सो वी कैन राइट हेयर
यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोर देन वन सब्सटेंसेस, more than one substance present. Okay, for example, salt solution is a solution is a mixture of two pure substances. Suppose हमने एक ये कंटेनर लिया, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। इसमें क्या है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर, because it is a mixture of salt and water, it contain two pure substances, one is salt and other is water. And milk is a mixture of water, fat and protein, all the mixtures are impure substances. क्यों impure होते हैं? Because they contain more than one kind of particle. यहाँ पे salt और water था, यहाँ पे इन दिस केस प्योर सब्सटेंस में ये जो हमने आयरन ब्लॉक लिया था, ये केवल क्या बना हुआ है, सिर्फ आयरन पार्टिकल्स का, ठीक है। यहाँ पे इम्प्योर और मिक्सचर के केस में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, ये हमने सॉल्ट सॉल्यूशन हम इसको नेम देते हैं। सपोज हमने लेट किया है एक एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। इस बीकर में सॉल्ट प्लस वाटर है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। ओके, यस, फर्दर प्योर सब्सटेंसेस can be classified into elements and compounds. So elements क्या होते हैं बच्चों? An element is a substance which cannot be split up. Elements वो substance है हमारा जिसको हम split नहीं कर सकते into two or more simpler substances by any physical or chemical method. Okay, और chemical methods of applying जैसे कि heat, light और electric energy, ठीक है। For example, hydrogen is an element because it cannot be split up into two or more. So here we can write element cannot be broken down to simpler, okay, to simpler substances. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम जैसे हमने एग्ज़ाम्पल वी टेक हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन इट इज़ एन एलिमेंट, हाइड्रोजन बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजुअल मेथड। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज सिमिलरली ऑक्सीजन is an element because it cannot be broken down into simpler substances by chemical methods. And suppose we take water, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो एज अ एलिमेंट हैं, ठीक। ऑन द अदर हैंड वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? वाटर होता है हमारा H2O, यहाँ पे लिखती हूँ H2O। तो ये हमारा एलिमेंट नहीं है, क्यों? बिकॉज इट कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पार्ट में ये ब्रोक डाउन हो जाएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी। जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो जाता है, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, an element cannot be split up into two or more simpler substances because it is made up of only one kind of atoms. Okay, if we talk other definition of element, so we can say an element is substance which is made up of only one kind of atoms. For example, copper metal is made up of, जैसे हमने यहाँ पर कॉपर मेटल लिया, ठीक है। ये सपोज let us take copper block. Copper is an element, it is made up of only copper atom. तो ये किससे बना है? सिर्फ कॉपर का, ठीक है। और अगर हमने कोई सपोज यहाँ पर आयरन ब्लॉक लिया, सो इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली आयरन, ठीक है, एटम्स। सो इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम्स। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा एलिमेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट कम
कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या हैं? कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंस विच हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। अभी मैं आपको बताऊंगी क्या है ये फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन कहने का मतलब है जिससे वो कंपाउंड बनाए। जैसे सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ वाटर H2O, तो इसमें ये किसका कंपोजिशन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये फिक्स्ड होता है वाटर फॉर्मूला H2O, ठीक है। कैन बी broken down into elements by chemical method, okay। अब आप कहेंगे अभी मैम ने बोला प्योर सब्सटेंस ओनली वन सब्सटेंस इज प्रेजेंट होता है इसमें और नो इम्प्योरिटी होती है, लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ एलिमेंट्स तो ठीक है, यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस होगा हमारा, ठीक है। लेकिन कंपाउंड के केस में क्या है? यहाँ पर तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया। बट हेयर वन वर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट टू नोन, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। सो स्टूडेंट, इफ वी टेक एग्जांपल वाटर H2O, ये क्या है? इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन chemically combined in a fixed proportion of mass 1:8। अब 1:8 कैसा है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ये होता है हमारा 1 यूनिट, ओके, एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16 यूनिट। देयरफॉर H2O, H2:O equal to hydrogen is here 2, so total mass of this hydrogen will be 2 unit, ठीक है। 1 hydrogen carry 1 unit, so 2 hydrogen 2 unit, ratio 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। ये आपको सीरीज लर्न होनी चाहिए थोड़ा, 20 तक अप्रॉक्स यूनिट, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दिस। ये क्या देगा? 2 ये कैंसिल आउट होके 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो ये क्या है? 1:8 फिक्स प्रोपोर्शन है ऑफ 1:8 बाय मास, सो डैट इज कॉल्ड कंपाउंड। सिमिलरली common salt sodium chloride NaCl is a compound made up of sodium and chlorine elements, okay, and similarly ammonium chloride NH4Cl. So these are the example of compounds, okay. Mixture can be classified into two parts. First one is homogeneous, second is heterogeneous, okay. It is of two types. होमोजीन, अब मिक्सचर क्या होता है? मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट, ओके, डैट मीन्स नो फिक्स्ड कंपोजिशन। यहाँ पे कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। इन केस ऑफ होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट मीन्स contain two or more substances, ठीक है, substances but exist in single phase, one phase only, ओके। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है सॉल्यूशन का, कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशन होगा उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड बट दी सब्सटेंस एग्जिस्ट इन वन फेज होगा सिर्फ। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, ठीक है, शुगर प्लस वाटर, एंड वी डिजॉल्व
sugar in water, after dissolving sugar in water, there is no visible boundary separation between sugar and water particle in a sugar solution. ठीक है. In case of heterogeneous में क्या होता है कि in case of heterogeneous non uniform composition, that means there will be suspension and colloids. ठीक है, ये दो टाइप्स के हम इसमें सॉल्यूशन पढ़ेंगे हेटेरोजीनियस में. अब ये क्या होते हैं हम इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन डिटेल. एग्जिस्ट इन 2 or more phases. So for example, sand and water plus water. ठीक है, सैंड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो सैंड क्या होता है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो पाता. ठीक है, तो यहाँ पर 2 फेज एग्जिस्ट होते हैं तो सैंड क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी इन वाटर. डेट इज़ द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस. हेटेरोजीनियस में क्या होते हैं, हमें जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो हमें विजिबल होता है इन सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है. इन केस ऑफ होमो मीन्स, होमो का मतलब ही क्या है, एक जैसा. ठीक है, हेट्रो जो होता है वो डिफरेंट शो करता है. नाउ नेक्स्ट, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. ओके, दीज मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स we will discuss in tomorrow lecture. Okay, in details. And compounds can be classified into acids, ये एसिड्स फॉर्म में होते हैं, बेसिस फॉर्म में होते हैं एंड सॉल्ट्स. ठीक है, थोड़े एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. मेटल्स के केस में जैसे आयरन हो गया, Fe, Mg, magnesium, copper, that is enough. And here in case of metal, iron, magnesium, copper is the example of metal. In case of non-metal, example is carbon, sulfur. ठीक. And in case of metalloids क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी कैरी करते हैं. ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, arsenic, these are the example of metalloids. In case of acid we all know HCl, HCl and H2SO4. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड ये किंग ऑफ केमिकल्स भी कहलाता है और HCl मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl. नेक्स्ट, इन केस ऑफ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. Okay, and salt NaCl is most popular salt here. So these are the compounds. फिक्स कंपोजिशन होता है इसलिए ये क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स कहलाते हैं. So these are the compounds because they have fixed composition. Okay, by mass. Okay student, so that was the flow chart about matter. ठीक है, फर्स्टली वी क्लासिफाइड मैटर इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर और मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंसेस हमने डिफाइन किया, फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ओके, एलिमेंट्स आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स हेयर, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स. एंड कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स. In case of mixture are of 2 types, homogeneous and heterogeneous. होमो क्या होता है, जिसमें हमारा एक समान होता है. ठीक है, सॉल्यूशन जो होगा वो एक समान होगा. हेट्रो क्या होगा, वो एक समान नहीं होता. ठीक है, एंड that was all about the classification of matter on the basis of chemical properties. Thank you class.